everyone, I'm Ria. Welcome back to my channel. Or if you're new here, welcome to my channel. I am a tarot reader and I bring you tarot readings regularly on different topics. I try to guide on my channel through my cards, through the wisdom that I have, the little wisdom that I have from tarot, right? Today's video will be a basic guidance video for what are the blockages in your life currently, especially for your love life. What are the blockages that you can work on? What is the guidance coming in for you? I have noticed that there are a lot of people collectively right now going through a lot of personal life challenges, and that is troubling a lot of people emotionally. So, what is the guidance coming in for you at the moment, all right, the moment that you are watching this video? Because there's going to be a general, timeless reading, all right? Before I start, thank you so much for subscribing, whoever has. Thank you for liking the video, commenting down below. I have been reading all the comments, and thank you so much for DMing me on Instagram, mailing me your feedbacks that you're loving the videos or you want to get a personal reading done. Okay, one more thing that I want to say before I start is that these videos are general for your personalized readings, for your tailor-made readings. You should book a personal reading with me or with anybody else that you resonate to. That would be great. Do not only rely on the general readings available. If your situation is something that you think is difficult right now for you to deal with, there's no harm in seeking help. All right, let's begin. What is the general energy of the collective right now? I want to look at the energy of the collective right now in terms of their emotional well being, their personal life, love life. How are the collective, how is the collective dealing with things? Okay. Knight of Swords, Five of Swords, the Emperor. Okay, so the first card that we have for your collective energy currently is the Knight of Swords. I think most of you right now watching this video, आप लोग का माइंड बहुत फास्ट पेस पे काम कर रहा है. आप लोग बहुत जल्द ही कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं. आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे रन कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक the impulsiveness in your words, in your thoughts, in your decision making is something that I can see. Also, as you can see, the horse is, moving at a very fast pace, and the person there also. Swords represent your mind and your thoughts. So हो सकता है mental overthinking चल रही है, overwhelmed energy है थोड़ी सी, and थॉट्स को लेकर आप बहुत क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर. तो यू फील लाइक थोड़ा सा there's a lot of energy within you which does not have the right channel, या फिर वो एनर्जी कहाँ निकले, एक सही डायरेक्शन में जाए. जैसे उनको एक डायरेक्शन पकड़ी हुई है, वो मुझे डायरेक्शन की कमी लग रही है. ठीक है. देन वी हैव द फाइव ऑफ स्वर्ड्स. आई थिंक बिकॉज हम पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को देखकर सोच रहे हैं, तो फिर फाइव ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये दिखाता है कि मे बी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट हो रखी होंगी अभी रिसेंटली में, इन योर रिसेंट पास्ट, that you feel like the people, the person in your mind, the people around you, you feel betrayed by them या let down by them. जो आपकी expectations थी लोगों से और उन लोगों से जिनके लिए आपने चीज़ें की हैं, उन लोगों की expectations, मतलब उनकी actions आपको बहुत ट्रबल कर रही हैं, आपको ओवर थिंकिंग में डाल रही हैं, और उस पर्सन या फिर पीपल से आपको आपके माइंड में ऐसा फील हो रहा है दैट दे हैव बिट्रेड यू, या फिर बिहाइंड योर बैक. डू यू सी द एक्सप्रेशन ऑन द पर्सनस फेस हियर, है ना? सो वो आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन थोड़ी क्लेवरनेस, थोड़ी विकेडनेस वाली एनर्जी है. तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी, आपको फील हो रही है कि चालूबाजी की है और समथिंग, और आपको एक्सपेक्टेड नहीं था उस इंसान से. आपको हर्ट, हम लोग को हर्ट कभी होता है? तब होता है जब it comes from people or from a person you least expect from, right? So that is why you are feeling a little hurt.
right now, sort of betrayed, let down, you know. Then we also have the emperor. So I think the emperor is showing me कि जो अभी कलेक्टिव जिस एनर्जी में है वो ये है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हो अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने डिसीजंस को लेने का। आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि आप एक स्टर्न फेस, यू नो, द एम्परर एनर्जी इज वेरी मैस्कुलिन, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. So this is the outcome that you want from the future. This is how you want to be. But is this your current energy right now? I don't think so. I think जो मुझे फीलिंग आ रही है, although emperor का कार्ड निकला है, I think your energy right now is कि आप emperor बनना चाहते हो. एक emperor की traits को आप embody करना चाहते हो कि आप straight decisions बनाओ और उस पर stick कर पाओ, right? That you have that clarity, that you have that sort of support from your लाइक एक राजा के पास अपनी प्रजा का सपोर्ट होता है, वैसे ही अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिले, सब मिले, यू नो, द लव ऑफ the people in your life. Or even career wise, you want to be the emperor, you want to have that authoritative position, but अभी वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है मुझे आपकी करंट एनर्जी में. लेकिन द पॉजिटिव थिंग इज कि आप चाह रहे हैं, लाइक आप होपफुल हैं, योर होप इज नॉट डेड. एंड आई ऑलवेज से होप जब तक अलाइव है, एनीथिंग कैन हैपन ऑनेस्टली, राइट? सो आप अपनी होप को ना मरने दें. दैट इज द मेन थिंग हियर, ऑलराइट? सो नाउ आई वांट टू सी, एनर्जी देख ली हमने कलेक्टिव की करंटली. आई वांट टू सी what is your guidance coming in for your love life now. What is the love life की guidance for the people? क्या है, क्या guidance आ रही है for the people in their love life? um Ace of Wands, Ten of Swords. Okay, so I think Ace of Wands मुझे दिखा रहा है कि the guidance that's coming for you in your love life is अगर आप कुछ start करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि एक नए सिरे से मैं एक रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ आपकी लव लाइफ में. इफ यू आर थिंकिंग, इट कुड बी अ साइन फॉर सम पीपल हु आर थिंकिंग, शुड आई मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, दिस फ्रेंडशिप, दिस रिलेशनशिप, or should I wait for this person? It is a sign that you should move on, that you should start something new. So, now two things. For some of you, this new could be with the same person, but that newness in the way you deal with the person, that newness in the way you deal with the relationship needs to be there. Okay. So, Ace of Wands जैसे वो क्लाउड से हाथ बाहर निकल रहा है, यू नो, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, राइट? सो आपका अगर करियर में चेंज आ रहा है या आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा. सेकेंड, आपकी लव लाइफ में कुछ नया आपको स्टार्ट करने की गाइडेंस दे रहे हैं. इफ यू हैव बिन इन दैट लूप कि मैं मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, मैनिफेस्ट करूँ इस पर्सन को वापस, या फिर क्या करूँ, द गाइडेंस इज स्ट्रेट अप कि एक न्यू चीज की जरूरत है. न्यूनेस विद अ न्यू पर्सन, विद अ न्यू सिचुएशन, और newness in the same relationship if you can work on it. Okay, but we then have Ten of Swords. So remember वो जो last Five of Swords का card आया था and then Ten of Swords right now. I am 100% sure some of the people जो देख रहे हैं इस वीडियो को 100% resonate करेंगे कि उनको बिट्रेड फील हो रहा है किसी एक पर्सन से या मल्टीपल लोगों से. लाइफ में आपकी गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आपको पता है ऐसे लोग आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपको मेंटली, क्योंकि स्वर्ड्स अगेन मेंटल थॉट्स, आई जस्ट टोल्ड यू राइट, माइंड को इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर. सो द गाइडेंस स्ट्रेट अप फॉर यू इज दैट टेक एक्शन. आप अगर ऐसे, हाउ द पर्सन इज lying down there lifeless almost, अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. You have to, the guidance for you is you have to get back up. You know, लाइफ में अगर चीज़ें अभी इतनी ख़राब चल रही हैं कि उन्होंने आपको इमोशनली मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया है, आप यू फील डिप्राइव्ड ऑफ एनी positivity, any hope in your life, because this card is very, you know, is of like कि सब सब एक तरीके से यू फील लाइक दिस द एंड, इज दिस द एंड ऑफ एवरीथिंग.
वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से मैं वापस शुरुआत करूँ? ये जो आप मुझे बोल रहे हो, आपको जब मैंने बोला कुछ न्यूनेस की ज़रूरत है, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं क्या करूँ? बिकॉज़ राइट नाउ दिस इज़ योर एनर्जी, राइट? यू फील लाइक दिस। एंड आई सी कि कुछ 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जैसे आप देख रहे हो कि मल्टीपल पीपल आर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। तो हो सकता है या तो आपके आस-पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख पा रहे होगे अपने वर्क प्लेस पर, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज में गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर आपके एट योर इंस्टीट्यूट, राइट? या फिर आपके घर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ लड़ाई, कुछ सम वर्बल fight is what I'm talking about, not violence. I don't see it as much, but I think some arguments or conflicts must be going around. If that is going around, then it is a sign for you that you need to understand. Also I think this is also showing an inner conflict. तो आपके माइंड के अंदर एक चैटर चलता रहता है कि मैं ये सही है, वो सही है, मैं ये करूँ, वो करूँ, तो बहुत कंफ्यूजन्स को भी ये दिखाता है, राइट? 5 नंबर इज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल विद द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो विद वन सेल्फ। और आप इंटरनली आप खुद से कैसे बात करते हो, आप खुद के छोटे छोटे डिसीजंस, फॉर एग्जाम्पल मैं आज क्या पहनूं, वो सब जो आपके दिमाग में जो डिसीजन मेकिंग चलती है या जो इंटरनल डायलॉग आप खुद से बात करते हो, उस सब में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, क्योंकि आप खुद से अगर क्लैरिटी से बात नहीं कर पाओगे तो आप अपने एक्सप्रेशन में भी आपके वो क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो उससे क्या हो सकता है, आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे लोग आपको, आपके लिए एक परसेप्शन बन सकता है जो आप जैसे हो भी नहीं। सो द पर्सन इन योर माइंड वो ऐसा चीज़ सोच सकता है या अज्यूम कर सकता है जो आप हो भी नहीं, एंड यू फील लाइक कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो यार, मैं ऐसे नहीं हूँ। एंड यू फील लाइक कि दिस पर्सन नोज मी, because I think I'm seeing this not with the world, I see this coming from people that are close to you, which is why it is hurting you so much, and I understand that. We have the 10 of I want to share that मेरे को बहुत ज़्यादा इशू हो रही है while making this video, while recording this video, because बार बार मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहे हैं, I'm deleting apps constantly, कि there is the storage is full. So this could also be a message for somebody here कि आपके लिए ना लाइफ में there is a lot going on, alright? आप overwhelmed हो, आपके दिमाग में मेमोरी ओवरलोड हो चुकी है, जैसे एक फ़ोन की स्टोरेज भर जाती है, जैसे मेरी भर गई है। आई थिंक आपकी लाइफ में आपके मेंटल कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें अभी चल रही हैं। हो सकता है आपको काम भी देखना है, घर भी देखना है, फ्रेंड्स भी देखने हैं, पढ़ाई भी देखनी है, जो भी आपका रोल है, यू आर बीइंग एक्सपेक्टेड टू डू थिंग्स जो कि ज़्यादा हो रही हैं आपके लिए और मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो द गाइडेंस फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑल्सो, बिकॉज़ व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो आई डोंट टेक एनीथिंग as like a coincidence or just something that happens, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। सो दिस कुड बी अ गाइडेंस फॉर यू कि आपको क्लटर रिमूव करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग, delete it from your system. How? Write it down, flush it somewhere, burn the paper. Okay? Express yourself, maybe to the person or within yourself, depends if the other person is even available to you. No contact situation है या फिर situation उतनी बिगड़ चुकी है कि आप बात करेंगे तो आपको पता है कि सामने वाला ओपन नहीं होगा, so don't go there. Deal it within yourself, all right? So when you do deal with things yourself, चीज़ें better हो जाएंगी। प्लस अगर आपका कबर्ड भर गया है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें होल्ड कर रहे हो जिसकी आपको नीड भी नहीं है, so this is also a sign for you to do a cleanup drive in your own room, in your own house, and remove the excess baggage that you've been carrying emotionally and physical things that you have. My throat is also अचानक से acting up. कुछ लोग का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, मतलब आप अपने इमोशंस बहुत टाइम से होल्ड करके बैठे हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो इश्यूज भी है, प्लीज़ अपने एक्सप्रेशन पे काम करिए। आई हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ शोइंग मी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है ना? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, बट आगे जाकर जब हमारे पास पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं फैमिली रिलेटेड, आई सी सपोर्ट ऑफ योर फैमिली कमिंग इन फॉर यू। आई सी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इमोशनल फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। दे विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ वट एवर डिसीजंस यू टेक। if you are having
issues with your family currently, maybe with a male figure, especially in your maybe your father, grandfather, brother, whoever. So वो चीज़ें आगे in the future positive होती हुई दिख रही हैं. All right. Queen of Wands. I think you will come into the energy of I'm done. I'm not going to take anybody's um anybody's BS anymore. And आप बहुत ज़्यादा जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे ना हर चीज़ में, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे. यू विल पुट योर फुट डाउन एंड यू विल बी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू एडजस्ट दिस टाइम फॉर पीपल. तो आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में एक थोड़ा सा चेंज मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी टू से बट अगर आपको डोरमैट जैसा फील हो रहा है कि लोग स्टेप ऑन कर जाते हैं मेरी बाउंड्रीज़ पे, मेरे डिसीजंस पे, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स को उतना नहीं ऊपर रखते हैं, या फिर पर्सन ऑल्सो इन योर लाइफ, तो फिर वो बहुत अच्छे से असर्ट करना सीख लेंगे आप अपनी बाउंड्रीज़ को और अपनी लाइफ को. एक एक कमांड देंगे, अपने अपने हाथ में आप चीज़ें लेंगे एंड यू वुड नॉट लाइक टू डिपेंड ऑन अदर्स इमोशनली और अदरवाइज. ओके, एक डिपेंडेंस ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है. ठीक है. एंड आई थिंक बहुत ना आप लोग की लाइफ में डिलेज चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ डिसरप्शंस आ रही होंगी एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट. आई वांट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू. अगर आप ये सारी गाइडेंस पे काम कर लेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू. इफ आई कुड प्रिडिक्ट समथिंग फॉर द कलेक्टिव. Personal predictions I try not to give, but generally how much you can book a personal reading for that. All right. Predictions if guidance is followed. See, this is exactly what I'm talking about. Queen of Swords, Three of Pentacles, Nine of Cups, and the Six of Cups. Do you see the positivity in the cards suddenly when we are asking this question कि अगर ये guidance follow हो जाती है तो. So basically ये हमें reassure कर रहा है कि वो guidance आपके लिए बनी है. If you're watching this video, this guidance is especially for you, okay? Queen of Swords बोल रहा है कि आप कि जो क्लैरिटी नहीं थी, आपको जो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आपको वो मिल जाएगी. आपको जो अथॉरिटेटिव पोजीशन नहीं मिल रही थी अपनी खुद की लाइफ में, या फिर जो आपके लोग हैं उनकी लाइफ के लिए, वो अब मिल जाएगी. ठीक है. देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी कि आपको सपोर्ट दैट वाज मिसिंग. डू यू सी थ्री पीपल एंड दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन. ये कार्ड कोलैबोरेशन और सपोर्ट को दिखाता है. सो मे बी फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, योर पार्टनर, योर एक्स पार्टनर, whoever you feel that lack of support or effort from, वो एक reciprocation आ जाएगी. That collaborative energy will come. Okay. And Nine of Cups. Nine of Cups, what can I say about this card? This card is about wish fulfillment. और वो इंसान जैसे बहुत comfortable होके बैठा हुआ है, तो एक comfort आपकी लाइफ में आ जाएगा. मे बी एक I'm not going to say great things like which are like unbelievable for you. लेकिन honestly I get like a positivity from this card to the extent कि हो सकता है आप अगर manifest कर रहे हो किसी person को वापस, तो वापस आ सकते हैं, या फिर आप communication manifest कर रहे हो तो वो चीज़ हो सकती है. आप अपनी career में कुछ manifest कर रहे हैं तो कुछ wish fulfillment आ रही है definitely, and it is going to be very content. That is going to make you very satisfied, make you feel very content, और वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए इमोशनली. ठीक है. सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी मुझे दिखाता है, मुझे दिख रहा है कुछ लोग को ना गिफ्ट्स मिलने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी अ साइन फॉर यू कि आपने गाइडेंस सुन ली है. ठीक है. आप चेंजेस ला रहे हो अपने अंदर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. अब लाइफ में कुछ बदल रहा है. ठीक है. इट इज़ गोइंग टू बी अ साइन फॉर यू. सम गिफ्ट, मे बी कोई इवेंट में कहीं से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, आप किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हो. ठीक है. सम एक्सचेंज ऑफ लाइक अ फिजिकल थिंग एंड ऑल्सो इमोशंस. आई फील लाइक अगर आपकी इन रिसेंट टाइम्स किसी बड़े से या फिर किसी छोटे से, नॉट ऑफ योर सेम एज, ओके, किसी बड़े से या किसी छोटे उम्र में इंसान से आपकी कोई इमोशनल कॉन्वर्जेशन होती है, इमोशनल एक्सचेंज होता है, it is a sign for you that things are moving for you in the right direction. All right. And I also want to see, oh my god,
Yes, see the judgment. We have the judgment. I cannot show you the full card. Judgment का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि all of this is very karmic for some of you. अगर आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये बार बार क्यों हो रहा है, ये एक इतना बड़ा लूप क्यों बन चुका है, तो जजमेंट बोल रहा है कि साइंस को सुनो यूनिवर्स के. मे बी समथिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, मे बी समवन इज नॉट मेंट फॉर यू, बट आप वो साइंस इग्नोर ही करे जा रहे हो. This is a very karmic situation that you're in, and there is a karmic lesson behind it. I do not like to use these words or terms lightly. तो फिर आप प्लीज़ समझिए कि अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ बहुत रेजिस्टेंस के साथ आ रही है, एक पर्सन, एक जॉब, एक सिचुएशन बहुत रेजिस्टेंस के साथ आ रही है, maybe it's not meant for you. You need to sit down and think, do you genuinely want it, or is your ego wanting it? Is your desire coming from your heart or from your ego? There's a difference, right? Try to understand that. Then I also feel that सेवन ऑफ कप्स का कार्ड इल्यूजन्स का कार्ड होता है, बट आई थिंक राइट नाउ व्हाट आई थिंक इज दैट अगर आप वो गाइडेंस सुन लेंगे ना, आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे लाइफ में कि आप चूज करेंगे. फिर अभी जहाँ पर आप लैक और डेस्परेशन की एनर्जी में, सॉरी टू से दैट, वो आपकी बदल कर एक आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे. देन यू विल बी द वन पिकिंग. सो यू नो, सो देन यू आर जेन्युइनली कमिंग इनटू एन एनर्जी जहाँ पर देख रहे हो आप वो कप्स हैं और हर एक कप में कुछ और ऑफर हो रहा है, तो यू आर गोइंग टू मेक दैट डिसीजन. यू विल बी कंफ्यूज्ड, there will be lack of clarity. Lekin it is always better to be in a position where you have to make the choice than feeling like you have no other choice, right? So there are options coming your way in terms of people, places, situations, opportunities are opening up for you. एट ऑफ पेंटिकल्स. लाइफ में आप अगर हार्ड वर्क करना चाहते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही थी, डिलेज हो रहे थे, डिस्ट्रप्शंस हो रही थी, जैसे कि ये वीडियो बनाते हुए मैंने आज बहुत फेस की है, तो मे बी ये जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, वो ऐसे ही दिखती है इन द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव एंड द एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग. It's all connected is what I mean, right? So eight of pentacles is basically showing me कि आपका hard work is the only substitute. There is no substitute to hard work. आपको वो इनर वर्क करना ही पड़ेगा. अगर वो आपकी रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, अगर आपको पता है कि आप में फॉर एग्जाम्पल एंगर इश्यूज है, ठीक है, या फिर आप में एक डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है बहुत जल्दी इमोशनल किसी इंसान पे, और आप वो इनर वर्क से भाग जाते हैं कि ठीक है ये बंदा मेरे लिए है अभी, तो मैं क्यों बैठ के खुद के इमोशंस को अकेले डील करूं. सो दैट वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, हो सकता है यही आपका लेसन है कि आपको वो अवेलेबिलिटी यू आर नॉट फाइंडिंग इट एनी मोर. और वो आपको कब मिलेगी? तभी मिलेगी, द गाइडेंस, जब आप वो इनर वर्क करेंगे. डोंट रन फ्रॉम इट. देर इज नो वे दैट यू कैन रन फ्रॉम इट. नो एक्सटर्नल सोर्स कैन हेल्प यू गिव यू समथिंग दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट, यू नो, जो आपके लिए अच्छा हो. इट इज ओनली गोइंग टू कम फ्रॉम यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज रीडिंग. बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनी है, पता नहीं आज इतने डिस्ट्रप्शंस क्यों हो रहे हैं. हो सकता है कि आप लोग ना बहुत टाइम से कुछ हेल्प सीख कर रहे हो लोगों से, मे बी फ्रॉम अ डॉक्टर, मे बी फ्रॉम अ हीलर, मे बी फ्रॉम अ टैरो रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर और हुएवर, और वो हेल्प आपको राइट गाइडेंस ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी आपका टाइम शायद ऐसा चल रहा है, या फिर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं कि यू आर नॉट एबल टू मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल और गेट द राइट काइंड ऑफ एडवाइस. यू नो, वो भी मुझे सेंस हो रहा है कहीं ना कहीं से. तो वो एक्सपीरियंस्ड, वो रिकमेंडेशन या फिर सजेशन अगर आपको किसी का चाहिए, कुछ चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है आपको. आई थिंक यू नीड टू सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट थिंग्स. चीज़ें बदलेंगी. आई एम bottom of the deck, wheel of fortune. Wheel of fortune shows movement, shows travel, shows that the wheel of your fortune is moving. So I'm telling you that things are hopeful. Things are not like this forever. Things are not gonna be like this forever. ठीक है, चीज़ें बदलेंगी definitely, लेकिन that right support and guidance for you, you will find it. Like आज मैंने ये वीडियो पोस्ट करनी है मतलब करनी है, because I know it will help somebody out there. तो ऐसे ही आप भी आइसोलेट मत करो खुद को. इफ यू डू रिक्वायर सम advice, some support, some guidance, just seek it. Maybe it's in your professional life, maybe it's in your personal life. Do it. All right.
And that's it for the video. Thank you so much for the love that you've been showing to me. If you want to book a personal session with me, you can go in the description box. There's an email ID given below. You can email me or you can DM me on my Instagram page, Readings by Ria. और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप डीएम करके रीडिंग बुक कर सकते हो, ईमेल करके रीडिंग बुक कर सकते हो. इट्स गोइंग टू बी अ पर्सनलाइज सेशन, ऑल राइट, एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द वीडियो. आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, एंड इफ देयर इज एनी वे दैट आई कैन improve my videos for you. All right, thank you so much guys for sticking around. All right, subscribe please if you have not yet. All right, thank you so much and all the best.